علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم. ہاں جی حضرت خیریت. کیا حال ہے؟ بس اللہ کا کرم ہے, دعا ہے آپ کی. اور کیا خبر ہے نئی؟ آواز کھول لو, ایک منٹ آواز کم ہے. ہلو, ہاں صاحب کیا خبر ہے؟ دعوت اسلامی کا اجتماع ہو رہا ہے اسپتال میں. کون سی تاریخ کو ہے؟ یہاں سے چل ہے نا. رضوی لوگ ڈھیلے پڑ گئے صاحب, ہیں؟ رضوی لوگ اب پلپلے ہو گئے. ارے یار رضوی لوگ کیا پلپل ہو گئے؟ کھلا رضوی لوگ تو ہمیشہ رو تازہ رہتے ہیں. ہو گئے بیکار ہو گئے. نہیں, ہاں رضوی لوگ تو ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں الحمدللہ. لیکن اس کے اجتماع میں تو ساتھ میں ہو رہا ہے نا. ازہری میاں کا فتویٰ کب مان رہا ہے؟ اب وہ تو صحیح ہے, حضرت میاں کے بہت سارے مرید جو ان کی تائید کرتے ہیں وہ تو خیر ہے, لیکن اب وہ کچھ اختلافات ہیں نا, کچھ خرابیوں کی بنا پہ. نہیں, وہ اب ازہری عقیدہ میاں میں کے تو مرید نہیں سنی رہے, جو ہے. تائید کر رہے ہیں وہ ختم ہو گئی ان کی مرید. کیوں؟ ازہری میاں نے صاف کہا تھا کہ یہ لوگ مسلک کے مبلغ نہیں ہیں, اور ٹی وی سے بتایا کہ اللہ کے رسول کی آواز آئی, الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا. ہاں کچھ خرابیاں ہے, وہ بات صحیح ہے, لیکن کفر تھوڑی ثابت ہوا ان کا. ارے لو, ٹی وی سے بتایا کہ اللہ کے رسول کی آواز آئی, اس سے بتاؤ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ چلو ٹی وی سے آواز آئی, لیکن کوئی ایسی گستاخی تھوڑی ہے. نبی لو کا علم, ارے نبی کا علم پاگل ہو جانوروں یعنی جیسا یہ ہو. کہنا کہ ٹی وی سے اللہ کے رسول آواز, یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اب ایسا بھی یار تو ہو سکتا سوچو ہے تو نا صحیح کچھ, یار, سوچو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کچھ سوچو, اگر دیوبندی تم بھابھی کچھ ایسی تو خواب بنا بنا کے پیش ازہری کرتے میاں نے ہو. کہا ہے, ازہری میاں جھوٹ بولیں گے کیا؟ ارے وہ تو مانتے ہیں کچھ خرابی ہے, ہم بھی مانتے ہیں اس میں کیا. کچھ کہے کہ ٹی وی مانتے سے ہیں اور جا بتایا. چلو رہے جنید بھائی ہیں حضرت, ہاں مانتے ہیں اور جا رہے ہیں ان کے استعفے میں. یہ جا رہے ہیں. ہاں جی جا رہے ہیں. ابھی میں نے تو کہہ دیا بھیا میں تو جاؤں گا نہیں, میں تو ابھی جاتا ہی نہیں ہوں. آپ کٹر ہو, آپ ہو کٹر. نہیں میں جاتا ہی نہیں ہوں, شروع سے ہی نہیں جاتا ہوں. نہیں, جانا نہیں چاہیے, بالکل صحیح ہے. اور یہ کہہ رہے کل ہمارے ساتھ عصر بعد چلنا. اچھا, ہاں, ہم نے بھیا تم ہی جائیے, تم ہی جاؤ, ہم تو نہیں جائے. ہمارے پیر ہے تو ہمارے پیر بھائی ہے بھی. لیکن ان کو کر رہا کرو صاحب آپ کی طرح. ارے بہتیرا کر رہا ہے, کئی بار انہیں ٹانٹ چکے ہر چیز کے اندر, مگر مانتے ہی نہیں ہے یہ. ارے یہ تو بہت غلط بات ہے. انہیں کئی بار ڈانٹا ہے چیز میں, تو مگر نا جب تائب شریعہ نے فرمایا کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں. ارے وہ تو صاحب مسئلہ کے حالات کے جب مبلغ نہیں ہے تو اس کا مطلب کلیئر ہے, دین اسلام کے مبلغ نہیں. اب تاج الشریعہ اگر جو ہے, مسلک حالت کا نام دین اسلام کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے تو بھئی دین اسلام کے مبلغ نہیں ہے. اور تاج الشریعہ فقیہ انسان تھے. کون تھے؟ فقیہ. ارے عالم تھے, اب تو قابل عالم تھے, قابل عالم تھے. فقیہ ایک دم کسی کو کافر نہیں کہتے. ہاں یہ کہی آپ نے بات, اب پکڑ میں آئی بات آپ کے. ایک دم کسی وہ کیا نام, حضور حسینی میاں نے فرمایا کہ وہ فقیہ انسان تھے, وہ ایک دم کسی کو کافر گمراہ نہیں کہتے. اور حسینی میں نے تو کفر کا فتویٰ لگایا تھا الیاس قاضی پہ. اور حسینی میاں نے شاید گمراہ کا تو ہے ہی ہے, مجھے نہیں کفر کے. کفر کا, وہ میٹھے میٹھے رسول کہنے کے اوپر. ہاں یہاں پہ ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. میٹھے میٹھے رسول کہنے کے اوپر. میٹھے میٹھا اب کہتے آپ سمجھدار آدمی ہو, یہ تو اندازہ لگاؤ کہ جب ازہری میں نے کہا کہ ٹی وی سے بتایا اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا, یہ کوئی معمولی بات ہے صاحب؟ شریعت نے یہ بھی تو بولا بھائیوں کی تائید مت کرو. ارے یہ کوئی معمولی بات ہے یار, وہ بھابھی کی بولا بات ہے, چھوڑو, وہ دیوبندی بولا, کی بات چھوڑو یار, یہ تو کوئی, وہ اسے تو اپنے الیاس قاضی کے ماننے والے یار کیسے مسلمان ہیں؟ ارے تو حضرت تاج الشریعہ نے یہ بھی تو فرمایا ہے. ارے یار اس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا, اپنا میلاد پڑھوایا, لبیک یا افطار کے نعرے لگوائے, صفحہ 31 میں لکھا اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے, کہاں تک برداشت کریں گے اس کی بات؟ پھر کئی جگہ ایک جگہ تو یہ کئی جگہ اس نے گڑبڑ اس کے مریدوں نے لکھا ہے کئی جگہ. کیا ارے معاملہ کافی, اس کے مریدوں نے ایک جگہ پتہ رہے یہ لکھا کہ ایک عورت تھی جس نے ہمارے مبلغ کو ٹی وی پہ دیکھا, تو وہ دیکھتے دیکھتے ایمان لے آئی, اس نے شادی کا پرپوز کیا. الیاس قاضی سے. نہیں تو وہ پتا کون تھے, وہ ہمارے امیر اہل سنت, وہ الیاس اتار قادری تھے ایسے کر کے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اب آپ سمجھدار آدمی ہو, اتنا بتاؤ اور کہ اس نے اس صفحہ 27 میں لکھا فیضان سنت میں
मौलाना फखरुद्दीन नागपुरी ने साफ कहा इलियास अत्तार खुला गुमराह है। हुजूर सिराज मिल्लत ने कहा इलियास अत्तार खुला गुमराह है। ये लाने वाला वही है फखरुद्दीन नागपुर में सबसे पहले, मौलाना फखरुद्दीन। हाँ, मौलाना फखरुद्दीन नागपुरी ने कहा, मैंने उनके बयानात बहुत सुन रखे नहीं, पहले वही लाए दावत इस्लामी को नागपुर में, और रद्द और बहुत से सबसे पहले ललितपुर में मैं लाया था। झांसी के बाद ललितपुर है ना, सबसे पहले मैंने बुलाया था अच्छा, उन्नाव से। और मेरे बुलाने के बाद ही फिर इनका आना जाना शुरू हो गया था। तो हजरत आपने आला हजरत तो आपने दावत इस्लामी को छोड़ दिया फिर? अरे तो तब तुम आदरी मियां का अपने पीर का फतवा नहीं मान रहे, तुम अपने पीर का फतवा नहीं मान रहे कि उन्होंने कहा कि उन लोगों ने टीवी से बताया, अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा दें, और ये भी बताया कि गौसे आलम की तस्वीर भी इन्होंने दिखाई है। आप तो आला हजरत की भी कमियां बताते हो। नहीं, ये भी बताया गौसे पाक की तस्वीर भी ये दिखाते हैं। आदरी मियां बता रहे हैं ये बात, कहा कि हमारी मुफ्ती आलम हिंद की तस्वीर, आला हजरत की तस्वीर ये दावत इस्लामी वाले दिखाते हैं। और आदरी मियां के जलसे का पोस्टर फाड़ा था जयपुर में 2013 में, जो जलसा हुआ था ना। मानते ना दावत इस्लामी? और इन्होंने बम्बई में हमला करा था एक जलसे में, सही कह रहे हैं। उनके बम्बई में हमला करा था। नहीं, ये तो सुन्नी होने का दावा, देवबंदियों से तो इख्तलाफ है यार। ये तो सुन्नी होने का दावा करते हैं, तो इन्होंने सुन्नियों पर हमला करा। हाँ, ये दावत इस्लामी वालों ने, हाँ आदरी मियां के जलसे में तो हमला किया था। हाँ, बम्बई में। हाँ, बम्बई में, जब वो खुद बता रहे थे कि मेरे जलसे में उन लोगों ने बादल डाली थी। और मुफ्ती आलम हिंद के मुरीद को घर में घुस के मारा था, हाफिज सिरासत साहब को, शाहजहांपुर वालों को। जो तगड़े कट्टर है दावत इस्लामी। देखो, हम ये नहीं कह रहे काम बुरा है, काम तो सब अच्छा है साहब, सब जानते हैं, लेकिन इसने जो हरकतें करी हैं कहाँ तक हजम करेंगे साहब? नहीं, इन पर भाभियों देवबंदियों का रद्द नहीं होता जी, हमें तुम्हें मारेंगे। कौन? दावत इस्लामी वाले। अपन इनको मारेंगे फिर। ये पाकिस्तान की तंजीम है दावत इस्लामी। हाँ, पाकिस्तान की। ज्यादा सर नहीं उठा सकते इंडिया में, जैसे ही उठाएंगे तो वैसी समझ लो कि इनके हाथ पे ढील हो जाएंगे फौरन। जरा सी बात कह दी ना अगर कि साहब ये तंजीम कहाँ की, इधर इनसे पूछो, बस इतने में इनके हाथ पे ढील हो जाएंगे। जब आप कट्टर सुन्नी हो तो आला हजरत की बात को, अरे तुम कैसे कट्टर सुन्नी है? तुम कैसे आदरी मियां के मुरीद हो जो इसकी दावत इस्लामी की तारीफ कर रहे हो? हजरत आप कट्टर, चलो वो तो मानते जो खराबी और है। इदरीस कैसा सुन्नी है जो कोटा साजिदेड़ा में रहता है, वो कहता है, एक तरह तो कहता है मैंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, हज के दौरान एक भी नमाज नहीं पढ़ी, होटल में जुमा पड़ा, और देवबंदियों से चंदा ला रहा 12 से और शाही मावा सेंटर कोटा से। गलत है। साधु शरीय का मुरीद होके वो ऐसी हरकतें कर रहा है, गद्दार है साहब, गद्दार है, आला हजरत है वो तो एक तरह से। उनके बारे में अभी नहीं मानेंगे हम, क्योंकि आप कह रहे हो अभी किसी आलिम ने नहीं कहा। अरे आप कोटा में मालूम कर लो, सब बता देंगे। आप कह रहे हो आपके देवबंद वाले, ये इसको छुड़ाया, ये किशोरपुरा से भागा था, इमामत से भगाया था इसको, तो इसको काजी, देवबंद वाले काजी नहीं छुड़ाया था, वहाँ के देवबंद के काजी थे, हजरत मौलाना काजी अनवार अहमद साहब ने इसको छुड़ाया था। हेलो, हाँ हाँ, कह रहा हूँ हजरत, जब आप कट्टर सुन्नी हो तो आप ये सवाल क्यों करते हो कब्र में शैतान अरे तो आएगा? वो हालात की बात को, हर बात को नहीं माना जा सकता। अकीदे का मसला थोड़ी है। अरे तो ये देखो, उन्होंने कहा अकीदे का मसला नहीं है, जुनैद साहब कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात की उन्होंने। अरे तो अकीदे का मसला नहीं है, लेकिन बात मानो, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। आपने जो लिख दिया तो गलत थोड़ी लिखेंगे आप। फिर कोई अकीदे वाली बात जाएगी, गलत नहीं लिखेंगे। आला हजरत सरकार सुनो, कोई मस्जिद में सुनो जुमे की, आला हजरत इनकी सुनो, जुनैद साहब की सुनो, जुनैद साहब सुननी नहीं रहेगा आदमी। हाँ, ये बात की उन्होंने, जुनैद साहब की बात मानो आप। तो कोई अंदर अजान देता, कोई बाहर देता, कोई सुननी नहीं रहेगा। बिल्कुल सुननी रहेगा। कब्र में शैतान आएगा नहीं आएगा? नहीं, तो सब सुन्नी उलमा की किताब। आला हजरत की सुनो, हुजूर ताशरिया से पूछा गया आला हजरत की मतलब कौन सी? आला हजरत की किसी जैसे हर बात, कोई किसी बात से आदमी जैसे आला हजरत की कोई बात है, जैसे कि आला हजरत कहते हैं बाहर अजान देना चाहिए, और कुछ सुन्नी अंदर अजान दे रहा है, जैसे बदायूं में अंदर अजान होती है, वो तो इख्तिलाफी मसला है। तो कुछ बातों में आला हजरत से इख्तिलाफ हो सकता है, अकायद में नहीं हो सकता। हाँ, ये कही अब आपने इख्तिलाफ, जैसे अभी मुफ्ती आजम एशिया मुनीबुर रहमान साहब, अरे वो तो चलेगा गड्ढे में, जब वो तो चलेगा, उनकी बात मत करो। और ये इलियास काजी ने इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ी है, ये गड्ढे में नहीं गया। उसने तौबा कर ली, उसने कहा मैंने तौबा कर ली, अब हजरत मैं नहीं पढ़ता हूँ खुद। नहीं, तौबा से काम चलेगा कि कलमा पढ़ना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा? कलमा हो सकता है, उसने तस्दीक निकाह भी करा हो, फिर उसकी बेत तो खत्म हो गई।
तजदीद निकाह का मतलब ये थोड़ी कि मौलाना निकाह पढ़ा है तो कह दिया मैंने तुम्हें अपनी निकाह में वापस लिया हो गया हाँ निकाह। तो वो तो ठीक है, लेकिन उसकी बैत तो खत्म हो गई ना, खिलाफत तो खत्म हो गई। खिलाफत खत्म हुई, खिलाफत के अच्छा, बाद उसने ये कहा कि साहबा किराम मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी नहीं हूँ। साहबा किराम से जोड़ कर क्यों कहा इसने अपने आप को? न जो मौलाना मुजीबुर रहमान साहब का देखो अभी अभी उन पे कोई हुक्म नहीं आया, ठीक है। कौन मुजीबुर रहमान? वो क्या मुनीबुर रहमान? अरे मुफ्ती आजम एशिया है वो मुनीबुर रहमान साहब, वो खाली गए थे मस्जिद में। वो तो आप किसी को भी लिख दो, तुम तो मुनाजिर आजम राजस्थान लिख देते हो, हमारे पीर भाई को आप तो कुछ भी लिख दो। अरे ये समझो आप हिंदुस्तान के नहीं एशिया के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। आपके लिखने से और कुछ ये नहीं जो था। दाऊद इस्लामी वाला फतवा दे रहा है ना, ये मरदूद है। ये इलियास काजी पे देना फतवा, इसने इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ी है, मुहद्दिस कबीर से कहा कि हाँ मैं पहले पढ़ता था अब नहीं पढ़ता। अभी आप हमारे जो पीर भाई है इरफान भाई वो टीवी में आके बताया कि हाँ जो मैंने पहले नमाजें पढ़ी थी मैंने दोहरा ली। टीवी में कहते एक बार आके इलियास काजी, जब हम मान लेंगे। टीवी में ये गुप्त में क्यों रखता है, ये छुपा के क्यों रखता है? अगर जैसे आप कह रहे तौबा कर ली होगी सबके सामने, जब उसने पढ़ी तो सबके सामने बताए, टीवी में आके कहे मदनी चैनल में कि जो मैंने नमाजें पढ़ी थी इमाम हरम के पीछे, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान होता हूँ, मैं नमाजें दोहरा ली। हुक्म तो यही है शरीयत का कि जब जाहिरी गलती करे तो जाहिरी तौबा करे। हाँ, आप समझदार आदमी हो, आप हो मुनाजिर सही। नहीं, हुक्म तो यही है बिल्कुल बिल्कुल ये जाहिर में जब उसने नमाजें पढ़ी है क्लियर खुद कहा है मुहद्दिस कबीर से कि हाँ मैं पहले पढ़ता था इमाम हरम के पीछे। और इदरीस के फतवे से तो वो उसकी नमाज वैसे भी कज़ा होगा, ये इस्लाम से खारिज हो गया कि नहीं? इदरीस कोटा वाले के फतवे से है ना, इदरीस कोटा वाले के फतवे से मुझे उनके बारे में पता नहीं है। नहीं, इदरीस के भाइयों ने, अहमद पटेल जो गुजरात के थे ना कांग्रेस के लीडर, उनके इसके भाइयों ने दुआ की, कुरान ख्वानी की। मुझे उनके बारे में पता नहीं है। अब ये खामोश है, अभी नहीं कहेगा कि हाँ मेरे भाइयों ने दुआ की है तो मैं उन पर कुफ्र का फतवा लगा दूंगा, इसलिए कि वो अहमद पटेल गुजरात वाले देवबंदी थे जो कांग्रेस के लीडर थे, सोनिया गांधी के कौन थे वो खास। मुझे तो उनका नाम इदरीस कोटा वालों का नाम सिर्फ मैं आपके मुंह से सुनता हूँ, मुझे नहीं पता। अरे वो रामपुर का सुला कुल्ली है, स्वार का रहने वाला है, यहाँ के कट्टर बन गया थोड़ा बहुत। और आपकी बात पे एतमाद इसलिए नहीं हो सकता कि आप हो सुला कुल्ली। अरे तो वो खुद सुला कुल्ली है, उसे आप सुला कुल्ली नहीं मान रहे? देवबंद वालों से चंदा जो लाए वो सुला कुल्ली नहीं है। 12 जाके क्या फतावा हुसामुल हरमैन बताता, पूछता है कि तुम फतावा हुसामुल हरमैन को क्या मानते हो, इमाम हरम को क्या मानते हो? वो इमाम हरम को मुसलमान नहीं मानता, इदरीस कोटा वाला साजी देड़ा वाला। उसने एक तो कहा मैंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, सब नमाजें कज़ा हो गई हाजियों की, जितने हाजियों ने पढ़ी सब नमाजें कज़ा हो गई। सब नमाजें कज़ा हो गई? हाँ सब नमाजें। जुमा वो कह रहा था मैंने होटल में पढ़ा था, होटल में जुमा कायम किया था, इतना बड़ा मुजद्दिद बन रहा वो। और इसका ये एक भाई है मुफ्ती इफ्तिखार, वो मऊ रानीपुर में है, उसकी दोनों बहनें देवबंदी में, मऊ रानीपुर झांसी में है, देवबंदी में दोनों बहनें देवबंदियों के घर में है उसकी। सुनो, हुजूर अजरी में भी पढ़ी थी, इसलिए तो ठीक है, वो तो उनकी बात अलग है, ये कोई अजहरी में थोड़ी है, इदरीस के अजहरी में है क्या? अजहरी मियां के बराबर है क्या? तो वो तो सही है। तो अजहरी मियां ने होटल में जुमा थोड़ी पढ़ा था, क्या पढ़ा था होटल में जुमा? अब उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, फिलहाल नमाज के पीछे उनकी गिरफ्तारी हुई थी। चलो खैर, लेकिन जुमा थोड़ी होटल में पढ़ा था। अब जमात के पीछे गिरफ्तारी हुई थी ना उन्होंने। अब ये बताओ, ये इदरीस साजी देड़ा वाला, इसके भाइयों ने जब अहमद पटेल की दुआ की, जो देवबंदी थे, गुजरात के रहने वाले थे, कांग्रेस के लीडर थे। बार कह चुका हूँ मैं, आपकी बात विश्वास नहीं करूंगा जब तक और उलमा नहीं। तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा साहब, जब तक और उलमा नहीं कहेगा। अच्छा ये बताओ, कोई देवबंदी अगर मर जाए तो क्या उसकी नमाज जनाजा पढ़ने से आदमी का निकाह टूट जाएगा? जो देवबंदी अगर मर जाए उसकी लोग नमाज जनाजा पढ़ लें, जिसके बारे में पता है ये गुस्ताखे रसूल है, हमारी बात समझना, जिसके बारे में पता है ये गुस्ताखे रसूल है और ये गुस्ताखी कर चुका है नबी की शान में, और इन चारों गुस्ताखों को ये मुसलमान मानता है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ने से टूट जाएगा निकाह। तो ऐसे कौन गुस्ताखी करता है? जैसे वो चारों गुस्ताख थे, नाम क्या लूं, नाम तो आप जानते हैं। उन्हें मुसलमान मानता था, उन्हें अगर मुसलमान मानता है गुस्ताखी जानने के बाद। अब वो गुस्ताखी जाने या नहीं जाने ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन लोगों को मशहूर यही था कि देवबंदी थे वो। गुस्ताखी जानने के बाद ऐसे तो सब देवबंदी जितने हैं जो पीछे पीछे फिर रहे हैं सबको काफिर थोड़ी कह दोगे। हाँ ये कही आपने बात, सब मुसलमान है बेशक, जो नहीं जानते मुसलमान। हाँ, सबको काफिर थोड़ी कह दो। वो काफिर है जो उनके अकीदे पे है, जो जैसे अकीदे उन्होंने लिखे। आप बहुत समझदार आदमी। अभी इदरीस तो हर एक को काफिर कह दे तो ऐसे थोड़ी मान लिया जाएगा।
बहुत से देवबंदी भी दावत इस्लामी वाले बन के चले जाते हैं, फिर उनके ख्वाब बताते हैं, उनको बदनाम करते हैं, मैंने ऐसा भी सुना। तुमने सुनने से क्या मतलब, तुमने देखा है? अरे इलियास काजी ने तो ये भी कहा है कि मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, सहाबा किराम मुजद्दिद नहीं थे। और इसने लिखा कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है खाने काबा में। सफ़ा 31 सफ़ा 27 में लिखा, जो भी इसके इज्तिमा में गया लांडी में सबकी बख्शिश हो गई। देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सबकी बख्शिश, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। ये भी लिखा सफ़ा 27 में, एक एडिशन में 44 में। इससे कब उसने कलमा पढ़ा, कब तोबा किया? साहब एक दो तोबा थोड़ी है, उससे तो बहुत तोबा करना पड़ेगी उसे तो। हजरत आप कभी कारी अहमद हसन से बात नहीं करते हो? मैं नहीं करता हूँ, साहब शायद गुस्ताखी करते हैं। क्योंकि वो मिल गया ना थोड़ा बहुत तुम में, बात ये है। नहीं, मैं साहबा कराम को मानता हूँ, अहले बैत को मानता हूँ, इमाम बाकर को, इमाम जाफर को, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहता हूँ, सईदा फातिमा ज़हरा को अलैहिस्सलाम कहता हूँ। बरेली वाले नहीं कहते, उनकी मर्जी। न सिर्फ आप बरेली मुफ्ती अख्तर हुसैन ने ये कहा था कि जो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहता है वो तोबा करे, यानी इमाम बुखारी तोबा करें। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में अलैहिस्सलाम लिखा, वो तोबा करेंगे। अब मैं क्या करूँ, गौसे पाक ने बुनियत तालिबीन में अलैहिस्सलाम लिखा, वो तोबा करें। फिर अंजन अब्दुल अजीज साहब ने अलैहिस्सलाम लिखा, वो तोबा करें। वाह यार, ये मुफ्ती अख्तर हुसैन ने कह दिया तोबा करें, जिसने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहा है। और ताजदार इल्म सैयद सिफ्तन हैदर मियां साहब ने अपने मुरीद से तोबा करवा ली थी, झांसी में झगड़ा खत्म करवा दिया था। उसके बावजूद मुफ्ती अख्तर हुसैन शहजाद आलम उनको मुसलमान न माने, तो फिर अब आप बताओ, उनको मुसलमान न माने, सही सुन्नी सही मुसलमान न माने। जामे अदर में सब देवबंदी पढ़ते हैं, 99% 98%। जाके देख लो, आप पहले खड़े होते अंगूठा नहीं चूमते, या नहीं कहते, हाजिर नाजिर वाला अकीदा नहीं, फतावा हुसाम अलमैन को नहीं मानते, इमाम हरम को मुसलमान मानते हैं। तो अच्छा, तुम इन चारों का दिफा करके दिखाओ हमारे सामने। एक बात बताओ, आप समझदार आदमी हो, जयपुर में 360 मस्जिद है, 300 देवबंद वालों की, 60 सुन्नियों की, बरेलियों की। तो क्या 300 मस्जिदों में जितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं देवबंद वालों के पीछे, सबको आप मुसलमान नहीं मानोगे? मैंने क्या कहा, अवाम पे ये हुक्म नहीं लगता, उन पे लगता है जो उनका कुफ्र जानने के बाद उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। हाँ, जो नहीं जानता वो तो मुसलमान है, वो तो यार मुसलमान मान ही जाएगा उन्हें। कौन कह रहा है? अब आप समझदार आदमी हो, इसी तरह से तो फतवा दिया जाता है, हर एक को थोड़ी काफिर कहा जाएगा। तो इसी तरह से अरब में जितने लोग रहते हैं, ये मुफ्ती समर अब्बास तारी और इलियास कादरी के फतवे से अरब के लोग मुसलमान नहीं है। अरब में निकाह नहीं होता इनके फतवे से। मुफ्ती समर मुशाहिद और गुफरान सियालवी समर अत्तारी के हिसाब से, इमरान अत्तारी के हिसाब से अरब वालों का निकाह ही नहीं होता, इसलिए कि रज़वी गवाह नहीं बनता, रज़वी वकील नहीं बनता अरब में। मक्का मदीने वालों के जो निकाह होते हैं सहाबा किराम की औलादों के, इलियास काजी के हिसाब से वो निकाह ही नहीं होते, बेनिकाही औलाद पैदा हो रही है इलियास काजी के हिसाब से, के मानने वाले नहीं इलियास काजी के हिसाब से। और मुफ्ती इलियास काजी ने कहा मैंने आला हज़रत पे आंखें बंद कर ली हैं, आला की बात मेरे लिए कुरान हदीस की तरह से बता दिया उसने। ये तो नहीं कहा कुरान हदीस की तरह, लेकिन साफ कह दिया हर्फ आखिर कुरान हदीस को कहा जाता है, आला हजरत की बात, यानी अल्लाह रसूल के बराबर कर दिया उसने इलियास काजी ने आला हजरत को, रोटी के लिए, बोटी के लिए, मुर्गे के लिए, बकरे के लिए, पैसे के लिए। जबकि उनके खानदान के आदमी ने तो फतवा लगाया इसके ऊपर कि मसलक के मुबल्लिग नहीं आला हजरत के, वो उसी लिए अपने आप को सुन्नी बनने के लिए उसने ऐसा काम किया। और उसने वल्लाहु व रसूलुहु आलम लिखवाना शुरू किया, आलत की मुखालिफत करी। आलत ने वल्लाहु आलम लिखा है, मुफ्ती आजम हिंद ने वल्लाहु आलम लिखा है, अज़हरी मियां ने फतावा देखो, अज़हरी मियां के फतावा में वल्लाहु आलम मिलेगा। इसने वल्लाहु व रसूलुहु आलम लिखवा कर ये सोचा कि मेरे लोग कट्टर सुन्नी समझेंगे, तरह तरह के ढोंग करता है, इतने ढोंग कर, इसके काले निशान थे माथे के ऊपर, अब देखो सफेद हो गया चेहरा। ये क्या करामत जाहिर हो रही है कि इसकी पहले चेहरे पे इसके काले निशान से गायब हो गए। ब्लीचिंग करवा लिया इसने, क्रीम पाउडर लगवा के, और ब्लीचिंग के नहीं, ये बताओ आप ब्लीचिंग करवा के इसने काले निशान क्यों खत्म करवाए? क्या बात है, आप हंस रहे हैं, माशाल्लाह आप काबिल आदमी हो, आप रोशन ज़मीर आदमी हो, करीब ब्लीचिंग करवा के। यार क्या कौन सी बात ला हजरत, ब्लीचिंग करवा के तो मेरी। हाँ, तो ब्लीचिंग करवा के इसने माथा अपना साफ करवा लिया। अच्छा, और इसने ये भी कहा कि मेरा बस चलता तो मैं हरी घास पर नहीं चलता, मैं मजबूरन हरी घास पर चलता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का रंग हरा है। और कोटा में जाके देख लो आप, विज्ञान नगर में, और वहां पर घंटाघर की मस्जिद में मैं खुद गया, लेटरिन का दरवाजा मैंने हरा देखा, लोटा हरा देखा। और इनका एक मरकज भरूच गुजरात में बाबा रेहान रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के पास, मैंने वहां भी अंदर खुद जाके पेशाब खाने में जाके मैंने लोटा हरा देखा और दरवाजा हरा देखा। और इलियास काजी क्या कह रहा, मेरा बस चलता तो मैं हरी घास पर नहीं चलता। तो ये अल्लाह को अदब सिखा रहा है, अल्लाह को
अल्लाह को अल्लाह के हबीब का अदब सिखा रहा है। अल्लाह ने हरी घास पैदा किया है, हरी सब्जी अल्लाह ने पैदा किया, धनिया हरी अल्लाह ने पैदा किया, अमरूद अल्लाह ने पैदा किया, ककड़ी अल्लाह ने पैदा की, सारी हरी सब्जी अल्लाह ने पैदा की। अल्लाह को अदब बता रहा है। बात सही है, सही बात है। बताओ तो सही, अब कहाँ तक हम हजम करें? हम काम से मना नहीं कर रहे, काम तो बहुत अच्छा है, लोग काम करें, लेकिन इसको छोड़ दे। मेरा तो कहना है कि इसको छोड़ के काम करें तो बहुत अच्छा है। इंडिया के आलिमों को सरपरस्त बना लें बस। इसको तो अमीर कहना भी समझ लो कि आप जिसने इसको अमीर कहा है सुन्नत का, कोई तो इसको भी तौबा करना पड़ जाएगी, कलमा पढ़ना पड़ जाएगा। बता दूं, सुनो हजरत, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी अच्छे आलिम ने इसे अमीर अहले सुन्नत नहीं कहा, ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान में कहीं नहीं कहा। क्या बात है, आप हो काबिल आदमी। और कोटा में तो एक मौलवी कह रहा था अमीर अहले सुन्नत कह रहा था, वो इमाम, वो ढंग का मौलवी नहीं होगा। क्या बात है, ऐसे लोग पसंद है। ढंग का मौलवी नहीं है, वो तो बस पैसे के लिए, अंडे मुर्गे खाने के लिए, बकरे खाने के लिए। मगर तुम सुने को लिए छोड़ दो हजरत। नहीं तो कोटा वाले मौलवियों से छुड़वाओ जो इसका साथ दे रहा है, इलियास काजी का यार, जो इलियास काजी का साथ दे रहा है उससे भी छुड़वाओ, कोटा आके छुड़वाओ। मौलवियों से, इमामों से कहो कि अजहरी मियां का जब फतवा है तो क्यों नहीं मान रहे तुम लोग। तो देखो अजमेर वालों को मैं बात बताऊंगा आपको भाई, फिर उधर इख्तिलाफ भी नहीं ले। एक बात और मैं बताऊं आपको, एक खास बात बता रहा हूँ, बस एक खास बात पे बात नहीं ले जा रहा हूँ मैं। एक मिनट की सुन लो, फिर सुनाना, 1 मिनट की बस। एक आदमी इसके सामने खड़ा होकर कहता है कि हजरत हम मदीने शरीफ गए थे, तो मदीने शरीफ में जब मैं गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम वहां जाओ इलियास काजी के पास तो मेरा सलाम कह देना इलियास काजी से। और ये वीडियो मौजूद है, वीडियो में बैठा हुआ है, अल्लाह की कसम खाकर कह सकता हूँ ये बैठा हुआ है, मैं अल्लाह की कसम खाकर कह सकता हूँ ये उठ के 1 सेकंड को भी खड़ा नहीं हुआ है। इलियास काजी बैठे बैठे अल्लाह के रसूल के सलाम का जवाब दे रहा है, बैठे बैठे कुर्सी के ऊपर। अब आप बताओ, अगर आपको गरीब नवाज सलाम भेज देते जयपुर में तो आप खुशी में झूमने लगते कि नहीं, खड़े हो जाते कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अगर बीमार भी हो जाते तो आप खड़े हो जाते, बीमारी खत्म हो जाती है आपकी, बुखार खत्म हो जाता है। अरे कोई सैयद ज्यादा सलाम भेज दे, हाँ तब खड़े हो जाएंगे उठ के। अब बताओ, इसको अल्लाह के रसूल सलाम भेजना और ये खड़ा भी नहीं हो रहा, कुर्सी पे बैठ के जवाब दे रहा है इलियास काजी। और ये कैसे मुसलमान है, ये कोटा के कैसे आलिम है, जयपुर के कैसे आलिम है, इन सब बातों को देखकर बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं बहुत सही है, देवबंदियों को भी बर्दाश्त कर लो, फिर अहले हदीस को भी बर्दाश्त कर लो। क्यों पीछे पड़े उन लोगों के, देवबंदियों के, अहले हदीस के? जब तुम सभी बर्दाश्त कर रहे हो तो इन सबको बर्दाश्त कर लो। बस एक दुश्मन समझ के दूसरों के पीछे पड़ जाते हो और इसकी सब बातें हजम कर रहे हो। पैसा मिल रहा है, 50,000 रुपए एक मुबल्लिग को दे रहा है ये कमबेश, यानी पैसा ज़कात का बांट रहा है, सस्ते का बांट रहा है, तो सबके मुंह बंद हो गए, सबके दिल काले हो गए खा खा के ज़कात। कुछ नहीं मिले, पता नहीं। ये बताओ, कालपी वाले गयास साहब ने इसका रद्द किया कि नहीं किया? कितना जोरदार रद्द किया, सबने किया है, सबने किया। अच्छा, ये अब्दुल सत्तार हमदानी रद्द करते हैं कि नहीं? भाभीियों का भी तो रद्द करते हैं हजरत। जबकि अब्दुल सत्तार हमदानी साहब तो सुल्तानुल मुनाज़रीन है, शेर गुजरात है, मुनाज़िर गुजरात है, उनसे बड़ा कोई मुनाज़िर है भी हिंदुस्तान में? बताओ। सही जोखनपुरी से ही बड़े मुनाज़िर हैं मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी साहब, उन्होंने पूरी किताब लिखी है इसके खिलाफ, दावत इस्लामी कलमिया। सही जोखनपुरी से भी बड़े मुनाज़िर हैं मुफ्ती अब्दुल सत्तार हमदानी। मैं हजरत के बयान सुनता रहता हूँ, है कि नहीं? सही जोखनपुरी से बड़े सगीर अहमद साहब तो दावत इस्लामी का सपोर्ट करते हैं। वो अजहरी मियां का गद्दार है, सही जोखनपुरी गद्दार है। हाँ तो वो सगीर अहमद साहब तो दावत इस्लामी का सपोर्ट करते हैं। तो करता है तो सपोर्ट गद्दार हुआ ना, अपने पीर का गद्दार हुआ, उसकी खिलाफत खत्म हो गई, उसकी मुरीदी खत्म हो गई, मैं ऐसी मुरीद कर रहा हूँ। तो कहीं दिखते हैं आला हजरत किसी स्टेट में, दोनों में से है? कहीं किसी स्टेट में नहीं दिखते सगीर अहमद साहब। अरे क्यों नहीं दिखते यार? तो तुम्हारा दिमाग सही है, ये सही कह रहा है जुनैद साहब, सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। 3-4 सालों तो कहीं नहीं दिखते, ना मथुरापुर में ना हुआ, कहीं नहीं दिखते। ये कहीं बहुत अच्छी बात सुनो, अरे यहाँ जो ताजुशरिया आ रहे थे, यहाँ तुम्हें ही नहीं पता, तुम्हें तमीज ही नहीं है। यहाँ जो ताजुशरिया आ रहे थे, सगीर अहमद जोखनपुरी का नाम हटवाया यहाँ से, कहीं यहाँ बुलाएंगे नहीं। अच्छा, तुम्हें कोई पता ही नहीं है कहाँ से नाम हटवाया था? पर मुझे पसंद है, देखो मैं उनकी बयानात सुनता हूँ। नहीं, कहाँ से नाम हटवाया था अजहरी मियां ने? जयपुर में जब हुजूर ताजुशरिया आ रहे थे तो मौलाना सगीर अहमद जोखनपुरी को भी बुला रहे थे ये लोग।
तो फिर तो कुछ उलमा जैसे नाराज हुए कि इन्हें क्यों बुला रहे हो, इनके वीडियो सब पे सबको सबके लिए अब ये जायज वो तो मतलब बनवाने लगे अच्छा वीडियो। सभी जोखनपुरी, हाँ वीडियो जायज बनवाते हैं तो ना, नहीं कहते, बनवाते हैं। खूब बनवाता है। मुफ्ती अख्तर हुसैन बनवा रहा है, मुफ्ती शेर यार सब बनवा रहा है। नहीं, मुफ्ती अख्तर सलीमी साहब तो हराम ही मानते, बनवाते नहीं है। आदमी चोरी तो कोई लगा दे कहीं छुपा छुपा। चलो सभी जोखनपुरी का फिर उलमा ने मना कर दिया कि इसको न बुलाया जाए जयपुर में, तो नहीं, यहाँ तो जयपुर में तो उस प्रोग्राम में मना कर दिया था। है ना। हाँ और सुनो, हाँ अब रही बात अजमेर, सुनो हमारी बात यह है हजरत की जैसे ऐसा है, सुन्नी तो बहुत है, पूरी दुनिया में जो सुन्नियत है 85%, मगर कट्टर सुन्नी कम है। 85%, कितने 85% सुन्नी है दुनिया में। 85 नहीं 98% करीब करीब। 85% तो 15%। अब बात रखो, ऐसी इलियास अत्तार कादरी ने जब 98 नहीं तो 95 तो मान ही लो, 5 में कादियानी मादियानी शिया वगैरह सब कुछ आ गए। चलो इलियास अत्तार कादरी थे, जब ताजू शरिया ने कहा तुमने टीवी क्यों लगाई मस्जिदों में, हाँ हाँ हाँ। तो कहीं हम दीन का काम करते हैं। अब ये बताओ, अजहरी मैंने जब इतना कह दिया कि इन्होंने टीवी से बता दिया कि उसकी आवाज आई, इलियास कादी को मेरा सलाम पूरी बात पहुंचा तो दो। सुनो। हाँ हाँ। तो कहीं हम दीन का काम करते हैं, तो सरकार ताजू शरिया फरमाते हैं कि ऐसे तो अहले सुन्नत वल जमात बहुत बड़ी जमात है, जो कब्बाली सुनते हैं वो भी सुन्नी है, वो भी कल को ढोलक मजीरे लेके मस्जिद में आ जाए, कहेंगे हम भी दीन का काम कर रहे हैं, तो क्या करेगा। क्या बात है बताइए। अभी तक जवाब नहीं आया। अरे साहब इसकी एक बात नहीं है, ये तो छोटी बात है जो इसने इलियास कादी के आदमी ने कहा कि टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज आई। ये बहुत बड़ी बात है, कुछ बड़ी बात नहीं। ये तो कोई मामूली बात, इदरीस ये साजिद देड़ा वाला उसके बावजूद मुसलमान मानेगा, कहेगा हम तो मानेंगे मुसलमान, क्योंकि उसे तो पैसा मिल जाएगा ना कहीं से भी, तो वो उसको मुसलमान साबित कर देगा, और जिससे इसको नाराजगी होगी उसे काफिर बता देगा, कुछ भी बता देगा। सब कुछ है, गुमराह जो उलमा ने कहा, ठीक है। अब ये बताओ कि इसने इलियास कादी ने कहा साहबा किराम मुजद्दिद नहीं थे, गौसे पाक मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी नहीं हूँ, और अपना माथा साफ करवा लिया, सफेद काले से सफेद करवा लिया। ये सब क्या तमाशेबाजी हो रही है साहब, कौम देख नहीं रही क्या। कौम के बस दिल काले यूं हो गया कि पैसा खिला दिया इसने, ज़कात सदक़े का जबरदस्त पैसा खिला दिया इसने। तमाशे तो इसने बहुत करे हैं, तमाशे तो इसने बहुत करे, बहुत तमाशे करे। आप समझते हो इस बात में, इनको भी समझाओ इरफान अजहरी साहब को, तमाशेबाजी नहीं चलती इस्लाम के अंदर साहब, ढकोसलेबाजी नहीं चलती है। जो इसने लिखा है कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं, और ये बैठा हुआ है सफ़े 31 फैज़ान सुन्नत में, और सफ़े 27 में लिखा है कि जिसने भी इसके इज्तिमा में गए, देवबंदी बरेलवी अहलदीस सबकी बख्शिश हो गई। क्या इसके इज्तिमा में सब बरेलवी सुन्नी थे? और साहब सब ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, ज्यादा टाइम हो गया, रात ज्यादा हो गई, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, ठीक है। ठीक ठीक, सलाम।